Hey guys, I hope you all are doing well. Welcome back to my channel Code Fusion Hub. This is going to be our lecture 3 for this Angular series. So, we'll just have a look what was covered in lecture 2, the setup and installation part, how to set up an IDE, configuring Node.js and how to install Angular framework. So, in case if you just missed that, I'll provide you the link in the description box. So, please go through this once and then we'll move to the further topics. So the topics for our lecture 3 are what is Angular folder structure? What do you mean by Angular folder structure? It is nothing but what all files and folders are present in the Angular. We'll discuss in detail about that. Next is what is Angular architecture? How is Angular designed? We'll discuss about that. And what is Angular imports? Why is it necessary to import some material in our Angular framework? And what are Angular decorators? Why do we use classes in Angular? And what is the role of modules and components in the Angular framework? We'll have a detailed view upon all these topics in the further video. So हम सबसे पहले फोल्डर स्ट्रक्चर देखने के लिए अपना प्रोजेक्ट ओपन करेंगे. So for that, you just have to go on the command prompt and go into the directory wherever your project is present. You can use cd command to switch between your directories. Okay, you just have to type code space dot. This will open your project in VS Code. Okay, so we got this. Okay, so we have multiple files and folders present in this project. First is the Angular files, which we get while installing Angular. Second is the VS Code files, and node modules is what we get from npm packages. So we don't have to do any modification in any of these folders and files except the src one. The rest all is developed by itself only while we install or uninstall something. So our modifications and our main coding part comes in the src folder itself. Okay, so going forward, we have this git ignore file. It is used to specify that which files and directories should be excluded from the version control while using Git. Okay. The next is our Angular JSON files. It contains all the configuration settings जो हमें चाहिए रहता है while working on multiple projects in an Angular workspace. Talking about package.json, okay, it has the name, version, description, etc., the dependencies and the dev dependencies, which is required for running the application. And this packaged log.json file here, it will give you a detailed view about all the dependencies and the dev dependencies that we have installed. So package JSON will give you high level information, but package log JSON will give you detailed information about what all dependencies and dev dependencies are required. Next is this readme file, which provides us some information about the project, like how to build it, how to generate, how to test something like that. Talking about this tsconfig app json and json. तो tsconfig में जो टाइपस्क्रिप्ट के कंपाइलर ऑप्शंस है उनके बारे में डेटा प्रोवाइड किया जाता है एंड दिस tsconfig app overrides the data and extends the functionality of this tsconfig json file. Okay, next this server ts file, this all server related files are used to configure node.js express server and provide angular server side rendering. Next we'll look upon is the index.html file. ये फाइल कोई भी एंट्री पॉइंट होता है एंगुलर एप्लीकेशन का. ये इंक्लूड करता है जो भी मेटा इन्फॉर्मेशन चाहिए या बेस यूआरएल को कैसे सेट करना है, डिफाइन करता है रूट एलिमेंट को कि एंगुलर एप्लीकेशन डायनामिकली लोड कैसे होगा. This is just a logo which is used over in the application, and in this assets also we can keep images and all. Next, talking about our HTML file,
It would contain all the HTML content which we are going to use as a template. नेक्स्ट है हमारा SCSS फाइल या CSS फाइल, जो भी आप प्रेफर करते हो यूज करना, जो भी एक्स्ट्रा स्टाइलिंग एंड CSS प्रोवाइड करना हो उसके लिए। spec.ts फाइल एक जैस्मिन टेस्टिंग फ्रेमवर्क है जो यूज करते हैं हम अपने टेस्ट केसेस को लिखने के लिए एंड टू रन दोस टेस्ट केसेस एफिशिएंटली एज पर आवर कंपोनेंट्स फंक्शनैलिटी। नेक्स्ट इज आवर TS file, which will include all the logic, all the functionality that we want to add हमारे कोड में। And next we'll see is this routing part, where we have to route our pages. So we'll give all the paths and routes over here in this file. Okay, so now we'll just open the terminal and run our project for once. Okay, हम पहले npm install क्यों करते हैं? क्योंकि जो भी सारी डिपेंडेंसीज, जो भी अपडेटेड डिपेंडेंसीज जो भी ये फाइल में प्रेजेंट है, वो सारी अप टू डेट इंस्टॉल हो जाए इसमें, ताकि हमें रन करते टाइम पे कोई भी एरर ना फेस करना पड़े। सो हम ngserve यूज करते हैं कमांड टू रन अ प्रोजेक्ट। हम npm start भी यूज कर सकते हैं एज अ कमांड, बट वो एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। बट ngserve जो है वो स्पेसिफिकली एंगुलर CLI कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज किया जाता है। सो वी प्रिफर यूजिंग ngserve फॉर आवर एंगुलर एप्लीकेशन टू रन आवर प्रोजेक्ट। So we'll just get this link for our local host, जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट रन होता है। ये एंगुलर का ऑफिशियल पेज आता है जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो इसका जो कोड है वो यहाँ पे लिखा गया है। ओके, एंड इफ यू वांट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट more commands related to ng, then आप just एक बार you can just go through this ng help. It will provide you multiple commands that are provided. Okay, so you can just go through this once. Okay, तो यहाँ पे जो भी कोड लिखा गया है वो यहाँ पे HTML में प्रेजेंट है एंड कुछ उसका TS फाइल भी। ओके, सो टॉकिंग अबाउट एंगुलर आर्किटेक्चर एंड CLI, एंगुलर का आर्किटेक्चर कुछ इस अकॉर्डिंग बनाया गया है कि उसमें जो भी हम कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस या कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको हम स्मॉलर स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर सके, ताकि एफिशिएंटली हम अपना कोड मैनेज कर सके और इजीली ऑर्गेनाइज कर सके। तो जब हम कोई मॉड्यूल क्रिएट करते हैं, तो मॉड्यूल के अंदर हमें डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स यूज करने मिलते हैं, सर्विसेज एंड वेरियस ऑल फीचर्स। एक मॉड्यूल के अंदर हमें मल्टीपल फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड की जाती है एंड उसके अंदर हमें मिलता है कंपोनेंट्स जो हम अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह यूज करते हैं टू बिल्ड एनी एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस कंपोनेंट्स के अंदर हमें मिलते हैं कुछ HTML टेम्पलेट्स, जहाँ पे हम अपना HTML और व्यू जो है UI का वो डिफाइन करते हैं, इंक्लूडिंग द CSS एंड रेस्ट। एंगुलर आर्किटेक्चर हमें बहुत सारी फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है, जैसे कि राउटर, फॉर्म्स, रिएक्टिव फॉर्म्स एक्सेट्रा, जो हम आगे की सीरीज में उसको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा व्हाट इज एंगुलर इंपोर्ट्स। सो विल जस्ट गो टू अ TS फाइल। तो यहाँ पे जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो भी फंक्शनैलिटीज हमें ये जो इनबिल्ट मॉड्यूल्स है वहां से इफ चाहिए, तो हम उसको इंपोर्ट करते हैं, ताकि ये जो फंक्शनैलिटीज जो यहाँ पे लिखी गई है वो सारी हम अपने कंपोनेंट्स, मॉड्यूल्स या कोई भी प्रोजेक्ट के पार्ट में यूज कर सके। ये तो हो गई इनबिल्ट फंक्शनैलिटीज, बट हम अपने भी कोई शेयर्ड सर्विसेज का फाइल हो या कोई मैसेजेस का फाइल हो जो हम क्रिएट किए हो, बट हमें उसको उसको भी अपने कोड में लाना है, देन हमें उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है वापस से, एंड वी कैन जस्ट रीयूज जो भी फंक्शनैलिटी हमने अचीव की हो कोई भी फाइल या कोई भी मॉड्यूल या कोई भी कंपोनेंट में, तो जस्ट हमें उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा, तो वी कैन यूज दैट फंक्शनैलिटी एंड फीचर ऑफ दैट कंपोनेंट और फाइल और अ मॉड्यूल। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट आर एंगुलर डेकोरेटर्स।
तो एंगुलर डेकोरेटर स्पेशल टाइप के डिक्लेरेशंस है जो टाइपस्क्रिप्ट में यूज किया गया है ताकि हम मॉडिफाई कर सके स्ट्रक्चर या बिहेवियर कोई भी क्लास या क्लास मेंबर्स का। जैसे कुछ इनबिल्ट डेकोरेटर्स होते हैं, जैसे कि ये कंपोनेंट है, इसके अंदर हमने प्रोवाइड किया गया है मेटा डेटा एज एन आर्ग्यूमेंट। तो ये जो सिलेक्टर है वो डिफाइन करता है एक HTML सिलेक्टर को। टेम्पलेट यूआरएल में होता है HTML का कंटेंट। स्टाइल यूआरएल में प्रोवाइडेड किया है SCSS का फाइल। जो भी हम CSS एंड ऑल इंक्लूड करेंगे वो यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है इसमें। बाकी ये जो स्टैंड अलोन एंड ये इंपोर्ट्स का पार्ट है, ये हम आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। ओके, तो जैसे ही ये डेकोरेटर को ये आर्ग्यूमेंट मिल गया, ये इंफॉर्मेशन मिला अबाउट व्हाट आइटम्स नीड्स टू बी डेकोरेटेड, तो ये अपना बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेगा अपने क्लासेस के लिए। तो जैसे ही हमने ये डिक्लेयर कर दिया ये सिलेक्टर, तो विल जस्ट यूज दिस शॉर्टकट Ctrl+Shift+F टू सर्च अ वर्ड इन अ होल प्रोजेक्ट। तो हमने इसको सर्च किया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसको मल्टीपल कंपोनेंट्स में यूज कर सकते हैं बाय कॉलिंग इट एज अ सिलेक्टर। हम इसको ऐसे कॉल करेंगे तो जो भी कंपोनेंट के अंदर का जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी फंक्शनैलिटीज है, वो हम अचीव कर सकते हैं बाय जस्ट यूजिंग दिस सिलेक्टर। तो इससे हमें एक ही कोड को मल्टीपल जगह पे लिखने की जरूरत नहीं है। वी कैन जस्ट रीयूज द कोड एंड यूज इट प्रॉपरली। सो नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंगुलर क्लासेस। तो एक क्लास क्या होता है? क्लास इज नथिंग बट अ ब्लूप्रिंट। इट एक्ट्स एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एनीथिंग। सो इमेजिन कि आप कोई हाउस को बिल्ड कर रहे हो, तो यू जस्ट हैव अ ब्लूप्रिंट दैट हाउ द हाउस शुड लुक इन द फर्स्ट गो। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल, इफ आपका कोई क्लास है, कोई पर्सन, ओके, तो ये पर्सन हो गया आपका ब्लूप्रिंट कि पर्सन ऐसा होगा। बट अभी उसके बिहेवियर, उसके फीचर्स या वो क्या होगा, तो वो हम इसके अंदर डिफाइन करते हैं कि ये क्लास है एक पर्सन, उसका एज 25 है, उसका बर्थडे इस दिन को आता है, एक्सेट्रा। तो ऑल द फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी ऑफ अ पर्सन आर प्रोवाइडेड इन द क्लास। Okay, so we'll just use Control Z to undo all items. Okay, so next is what are Angular modules and how do we generate modules? तो सबसे पहले मॉड्यूल्स को जनरेट करने के लिए जो कमांड है वो है ng generate module। आप ऐसे लिख सकते हो या यू कैन यूज द शॉर्ट फॉर्म ng-gm। give any name for your module, suppose you are giving it as a navbar। okay, ये आपके मॉड्यूल का नाम है जो आपने रखा है। सो यू हैव टू एनेबल राउटिंग ताकि आप राउट कर सके सारे पेजेस में। सो यू जस्ट हैव टू एनेबल राउटिंग एंड दिस विल क्रिएट अ मॉड्यूल फॉर यू। तो मॉड्यूल इज नथिंग बट लाइक अ कंटेनर विच होल्ड्स the pieces of like component services and your API calls, etc. Many all things are included in this module. These modules help you to organize and separate different parts of your application all together. So here अभी हमें ये राउटिंग मॉड्यूल मिल गया। यहाँ पे हम डिफरेंट राउटिंग के पाथ सेट कर सकते हैं। राउटिंग क्या होता है एंड हाउ डू यू यूज दैट, विल कवर इट इन आवर फर्दर वीडियोस। अब मॉड्यूल के अंदर हम बनाते हैं कोई कंपोनेंट, तो उसके लिए कमांड है ng generate component। Otherwise, you can use this shortcut ng-gc and give it a name as home. Okay, this will just create a component for you. Okay, okay, so we didn't select the path. We'll just have to copy the path. Okay, so here we'll again create a component, say login. Okay,
तो ये जो कंपोनेंट है ये मॉड्यूल के अंदर बनेगा, तो उसके लिए हमें उस मॉड्यूल का पाथ मिलना जरूरी है। सो दिस विल क्रिएट अ कंपोनेंट मॉड्यूल के अंदर, ओके। तो इट विल हैव a HTML file, a SCSS file, a testing file, and also a TS file. Okay. सो अब इससे हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने वहां पे सिलेक्टर देखा था, तो जैसे ये सिलेक्टर हमने ये बना लिया है, तो अभी हम जो भी कोड करेंगे इस कंपोनेंट के अंदर, इफ यू वांट टू रीयूज द सेम कोड इन अनदर कंपोनेंट, तो हम सिर्फ उसका सिलेक्टर जो है उसको उस कंपोनेंट में कॉल कर देंगे, ताकि हमें कोड को रीराइट ना करना पड़े, एंड आवर कोड इज मोर मैनेजेबल, ऑर्गेनाइजेबल एंड रीयूजेबल। Okay, so this was all about modules and components and how do we use them, and we'll see how to use them in our further videos in detail. Okay, so this was all about this lecture. We'll see what are standalone components, why is it important in this Angular version, and what are the features upcoming with this, and what are the data types and the type of data types, what are global and local variables, and what is the difference between where, let, and constant. We'll cover all these topics in our next lecture. So please stay tuned, and if you liked the video, then please click on the like button and share it with all of your friends and colleagues. And if you have any doubts or suggestions, then please let me know in the comment section below. Till then, take care.